Okay, now question number 7, in which given it is said to be about the rhombus. Okay, तो rhombus की properties क्या होती है पहले ये जान लो. Property of rhombus is AB is equals to BC is equals to DC is equals to AD. Okay, इसकी जो sides होते हैं which are equal to each other and here the diagonals are intersect at 90 degree and bisected to each other. ठीक है, जो diagonals होते हैं वो क्या होते हैं उसके अकॉर्डिंग, जो diagonals होते हैं diagonals AB and AC, BD and AC are intersected at the 90 degree. Both are, this one is 90 degree, this one is 90 degree also. Okay, and this one AO is equals to CO, OD is equals to OC and मतलब क्या होता है यहाँ पे AO is equals to OC is equals to OD is equals to OB. These are also equal to each other. Okay, dear students, and one more thing, angle DOC is equals to angle COB is equals to angle BOA is equals to angle AOD. These are all right angle. Which is 90 degree. So यहाँ पे क्या करना है, here प्रूफ करना है, this is given. ठीक है, इसको आप चाहे तो गिवन पार्ट्स में लिख सकते हैं. ठीक है, ABCD is a rhombus. Okay, dear students, then AB is equals to this one and this one is equals to, these are the properties of the rhombus. So according to this, we have to prove that, what we will prove here, square of the sides AB square plus BC square plus CD square plus AD square is equals to the sum of its square of diagonals. ओके, तो यहां से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, देन वी राइट हियर इन ट्रायंगल AOD. ओके, देखो ये सभी राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं. देन applying Pythagoras theorem. Then this one is hypotenuse. ठीक है, 90 डिग्री 90 के जो सामने होते हैं which is hypotenuse, which is AD square is equals to AO square plus DO square. ओके, सिमिलरली फॉर ऑल द ट्रायंगल्स. ठीक है, जितने भी ट्रायंगल्स हैं उन सभी से सिमिलरली कर लेते हैं. यहाँ पे ट्रायंगल DOC, अप्लाइंग Pythagoras theorem, then we get DC square is equals to DO square plus CO square. ओके, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, वैसे ही आप जितने ट्रायंगल्स हैं सभी के लिए आप लिख लेंगे. ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं. सिमिलरली फॉर ट्रायंगल COB एंड ट्रायंगल फॉर BOA, we get CB square is equals to CO square plus
BO square third and BOA we can write here AB square is equals to BO square plus AO square. This is equation number 4. Okay dear students, now what we have to prove here? Now we add AD square is here, AD square, okay, CD square, DC square, okay, is here, BC square is here, AB square is here, okay. So adding equation 1, 2, 3 and 4 we get, देखो एक साइड का तो मिल जा रहा है यहां से, ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 इज दिस वन, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसके राइट हैंड साइड भी जो होंगे वो एड्स हो जाएंगे, AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर. Okay dear students, so here is combination of DO 2DO square to AO square and to right here AD square plus DC square plus CB square plus AB square is equals to 2 AO plus square plus 2 DO square plus 2 CO square plus 2 BO square. Okay dear students, now 2 is common, AO square plus BO square, okay, 2 is common to all, plus not BO, it's take as a CO square, okay, plus 2 is common here also, and DO square plus BO square. Okay dear students, now we write here, we know that AO is equals to OC OD OD, मतलब कुछ भी चीजें हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्वल ले सकते, मतलब कि इक्वल कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. सो नाउ हियर AO ले लेते हैं, AO is equals to A2AO, that means 2AO square because these are equal to each other, okay, and plus 2 and this one is also 2 DO square, ठीक है. अब चाहे तो BO square है, CD square भी ले सकते हैं. सो नाउ 2 is outside, 4 AO square plus 4 DO square. Okay dear students, I hope you understand up to this. Okay, now AO is a half of, here देखो, AO is a half of AC, okay, and DO is a half of dB. Okay dear students, put this value here. 4 AO का वैल्यू क्या हो जाएगा
AC by 2 square plus 4 DO की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ dB ऑफ हाफ which is square. Now 4 AC square upon 4 is equal plus 4 dB square upon 4. Okay, 4 to 4 cancel, 4 to 4 cancel. Now we get AD square plus DC square plus CB square plus AB square is equals to AC square plus DB square, hence proved. Okay dear students, hence proved. ये देखो, ये इसके 3 साइड्स है, उसके सम का स्क्वायर का सम. ओके, एंड इट्स दिस इज आर डायगोनल्स. AC स्क्वायर एंड DB स्क्वायर आर द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल रोम्बस ABCD. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन. ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेना है. तो दिस वे, ओके, एंड to here, to here. Okay dear students, now we get a multiple right angles, right angle FOB, BOD, DOC, COE, AOE, AOF. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, जितने भी, ठीक है, राइट एंगल्स, ट्रायंगल्स, उस सभी में आपको क्या करना है ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेना. ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शंस को हमने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, और लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जितने भी राइट एंगल्स हैं उन सभी में क्या, राइट एंगल ट्रायंगल सभी में अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम. अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, जस्ट लाइक एग्जांपल बताया, तो एक ट्रायंगल आपको AOE. ओके, तो हियर वी गेट दिस इज राइट एंगल्स ऑफ just upside of the right angle is hypotenuse, which is AO square is equals to EO square plus AE square. ठीक है, ऐसे ही आपको क्या मिलेगा, AO मिल गया. ठीक है, OC स्क्वायर भी मिल जाएगा ऐसे ही. OC के बाद और कौन से मिल जाएंगे, BO स्क्वायर. ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग इसको लिख लेंगे आप, इन दोनों को. अब क्या करेंगे, इन सभी को एक साइड ऐड कर लेंगे. ठीक है, इन सभी को एक साइड ऐड कर लेंगे, जितनी भी चीजें होंगी, जो जो चीजें आपको देख लेना, प्रूफ क्या करना है आपको, ये चीजें तो एक साइड में प्लस में रहेंगी. ठीक है, एंड जो चीज माइनस में उसको इस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर लेना. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज सॉल्व्ड. ठीक है, उसका सेकंड पार्ट भी उसी से रिलेटेड है. अब मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है, 9, 10, 11 और 12. ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 17. दिस इज फॉर यू, इन विच सिंपली अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन. ठीक है, सभी में राइट एंगल्स दिए हुए हैं. आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड. राइट एंगल्स दिए हुए हैं, जो भी साइड, ये साइड अगर चाहिए, ठीक है, तो ये साइड गिवन है. अगर ये साइड निकालें तो ये साइड गिवन है. ठीक है, मतलब कोई भी दो साइड जो है वो क्वेश्चंस में दी हुई है. तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट ऑल दिस वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी डायरेक्टली डिस्कस द
क्वेश्चन नंबर 13. What is question number 13? This is given triangle, right angle triangle ACB, right angle at C, okay, and so that proved here 2 points CA, D and CB on side CB point E is given, okay. So here सबसे पहले आप एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. What construction is will be here? Join TE DE को ज्वाइन कर लो, ठीक है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर फिगर. सो यहां पे आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शंस के थ्रू हमने इन सभी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है. नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ACE, what we will get AC from triangle ACE? We get this one is 90 degree, okay. ACE दिस ट्रायंगल की बात करो, ठीक है. तो यहां पे क्या हो जाएगा, AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. नाउ फ्रॉम ट्रायंगल डायरेक्टली लिखता हूं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल, ठीक है. यहां पे लिख लेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. Then we get this thing, okay. In triangle DCB, कोई भी ट्राइंगल आप ले सकते हैं, ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है, वी गेट DC DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस CE square. Okay dear students, this is equation number 2. Now in triangle DCB हो गया, ठीक है. तो DCB है तो इसमें ये DB होगा, DB स्क्वायर DC इज इक्वल्स टू CB स्क्वायर, ठीक है. DCB ट्राइंगल में इन ट्राइंगल DCE अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, वी गेट DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. And in overall triangle, in triangle ACB, applying Pythagoras theorem, we get, ठीक है. इसको प्रॉपर वे से लिखेंगे, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं अभी. AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर. This is equation number 2. This is equation number 3. This is equation number 4. Okay dear students, now let's we check which things we got, okay. So just like here AE and BD. What is BD? Okay, so this is equal. अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर CE स्क्वायर, ठीक है, एंड DC स्क्वायर CB स्क्वायर. सेम थिंग देखो, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 + 2 कर देता हूं, ठीक है. 1 + 2 दैट मीन्स क्या क्या मिल जाएगा, यहां से देख के बता रहा हूं, ठीक है.
इसके अकॉर्डिंग AE स्क्वायर, ये साइड में रहेगा आपको, ठीक है, प्लस यहाँ जगह नहीं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, BD है तो हम लोग भी BD लिख लेते हैं इसको, इज इक्वल्स टू फॉर AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर. ओके, सेम थिंग फॉर दिस वन. सो थर्ड प्लस 4 करेंगे, ठीक है, तो थर्ड प्लस 4 में क्या होगा, AB प्लस DE प्लस AB, उसके अकॉर्डिंग लिख रहा था मैं, ठीक है, DE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. अब इनकी साइड से देख लो यहाँ पे, DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स से कंपेयर. CB इसमें है, CB इसमें भी है, DC इसमें है, DC इसमें भी है, ठीक है, CE स्क्वायर AC स्क्वायर AC स्क्वायर. दैट मीन्स ये दो इसके इक्वल है, ठीक है, और इसके इक्वल ये है. दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको आप ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 5th एंड इक्वेशन नंबर 6th. फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड 6th, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ठीक है, ये जो साइड है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, which is our proved thing. Okay dear student, so finally our question is proved. What is question number 14? Question number 14 said given that DB is equals to CD, here is one triangle ACB in which AD is perpendicular on BC, and also given DB is equals to 3 times of CD. ये जो CD है इसका 3 times है DB. Okay dear student, and prove that AB square 2AC square plus 2BC square. So let's see here. यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल. डायरेक्टली लिखते हैं ट्राइंगल ABD अप्लाइंग Pythagoras theorem. Okay, then we get AB square, इसके जस्ट सामने जो होगी वो हाइपोटेन्यूस होगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर. ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड in triangle ADC applying Pythagoras theorem. सभी क्वेश्चन में एक ही चीज दिया हुआ, सभी में पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद फिर हम लोग उसको अप डाउन करके कुछ भी करके उसको वैल्यू को पुट आउट कर लेते हैं, ठीक है. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD प्लस CD स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, ठीक है. अब लेट्स सी हियर क्या क्या चीजें हमें चाहिए. सो हियर AB तो मिल गया यहाँ पे, ठीक है, AB स्क्वायर यहाँ पे AB स्क्वायर भी मिल गया. वी कैन राइट हियर AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, एंड यहां पर भी वही चीज मिल रहा है हमें, ठीक है, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. So both are the things are equal to the same thing, that is when AB square minus DB square is equals to AC square minus CD square. Okay, now put the value
ये यहां से ले लेते हैं, ठीक है। वी नो dv माइनस dv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3cd स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ओके, सो AB स्क्वायर माइनस 9CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी AB स्क्वायर is equals to AC square plus 9CD square minus CD square. Okay dear students, so here we got a AB square is equals to AC square plus 8 CD स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी, CD से CD कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से, ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम। नाउ हियर वन थिंग इज CD इज व्हेन वी कन्वर्ट CD इनटू इन द फॉर्म ऑफ DC, ओके, सो वी गेट अ वैल्यू, करेक्ट वैल्यूज। ओके, सो नाउ हियर वी कन्वर्ट हियर BC इज इक्वल्स टू क्या होता है, BC इज इक्वल्स टू CD प्लस DB। Okay dear students, and BC is equals to DB is equals to 3CD, CD plus 3CD। okay, so BC is equals to 4CD। इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, that means BC by 4 is equals to CD। value of CD is BC by 4। okay, so put the value here and let's say what values we will get here। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है यहाँ से, ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ कुछ, ठीक है। दिस इज आवर अनदर इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू। ठीक है, ये जो भी इक्वेशन होगा इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे ऑफ CD। सो वी गेट AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस 8 इंटू CD की वैल्यू कितनी, BC बाई 4। ओके, सो दैट AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8, AC स्क्वायर प्लस 4 1 जा 4 2 जा 2BC, sorry, here this one is in a square form। okay, so this one is also in a square form, that means 8 into BC by 16। okay, so 8 1 जा 8 2 जा, that means AB square is equals to AC square plus BC by 2। okay dear students, now we getting something almost our answer। AB square take LCM of both, that means we get AC square plus BC square divided by 2। ठीक है, इन दोनों का LCM लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 2 1 जा इसके साथ करेंगे, 2 1 जा 2 and multiply with this, 2 multiply AC square, then we get this thing। okay dear students, now 2 इधर ट्रांसफर करेंगे, 2 AB square is equals to 2 AC square plus BC square, that's proved। ओके, सो आप इसको कॉपी में सिस्टमेटिक वे से लिख सकते हैं, ये चीजें याद रखेंगे, दैट मींस योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 सेम लाइक दैट। ओके, उसमें इक्विलैटरल दिया, क्वेश्चन नंबर 15 में इक्विलैटरल से थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम। ठीक है, इक्विलैटरल मतलब क्या होता है, सभी साइड्स उसकी इक्वल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी एक साइड्स को आप ले करके उसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इस साइड जो है उसका A है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है,
which is A, B, C and point E and D is another point. D एक पॉइंट है, ठीक है, वो भी यहां से एक पॉइंट है A. So अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स में यहाँ इसकी वैल्यू भी दी, BD इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग एंड अल्टीट्यूड है, ठीक है, इक्विलाइजर ट्राइंगल में दैट मींस BE इज इक्वल्स टू EC होगा विच इज A/2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तीनों साइड आपको पता है, तीनों साइड से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सभी की, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये साइड पता है आपको कितना है, ये साइड पता है, ठीक है, ये साइड आप फाइंड आउट कर लीजिए, सेम इसमें कर लीजिए, ठीक है। लास्ट में जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यूज को आप पुट करेंगे, देन फाइनली योर सॉल्यूशन इज कम आउट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इजी and 17 do it by yourself. Finally exercise 6.5 is over. Okay dear students.